श्रीनगर में G20 मीटिंग के दौर से ग्रीन टूरिज्म के फरोग देने पर जोर देते हुए सियाहत के स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत की गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने राजभवन में तमाम नुमाइंदों से मुलाकात की। Since eternity, Jammu Kashmir is known as crown jewel of India, and today I would like to say that it is a matter of great pride for 13 million citizens of this union territory to host this G20 meeting of Tourism Working Group that is deliberating on global architecture for sustainable tourism. Friends, Jammu Kashmir has always been a center of wisdom, knowledge, inclusive culture and breathtaking landscape that is divine to travelers. Famous poet Amir Khusro, while describing the natural beauty of Jammu and Kashmir in 13th century, had said, and I quote, "Gar Firdaus barwe zamiyast hamiyasto hamiyasto hamiyast." If there is a paradise on earth, it is this, it is this, it is this. So it is not surprising that in the modern days, one of the oldest travel guidebook published at Lonely Planet chose to call Jammu Kashmir as Switzerland of India. Friends, for almost 30 years, this land of peaceful coexistence of almost all religious sects had to suffer state-sponsored terrorism by our neighboring country. However, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, through development schemes that empowers masses and Union Territories' effective administration, isolated the terror ecosystem which thrived with the support from across the border. Jammu Kashmir is witnessing a new era that has opened limitless possibilities of growth and peace. Now even foreign investments are also coming into Jammu and Kashmir. Green shoots of better times people are anxiously looking up to. Friends, I will run you through broad contours of our deep dive initiative to demonstrate India's resolve that Jammu Kashmir should also benefit from the virtues of democracy like the rest of the states and union territory. Equally pertinent is that tourism cannot grow in isolation. The economics of it is fine. The tourism needs good infrastructure, sound policies and effective and responsive governance. No less fundamental to me is the fact that only peace and happiness of people can bring warmth in the hospitality we Indians eternally enjoy. And I would like to mention here that tourism in Jammu Kashmir is also a reflection of multi-religious and multicultural ethos of India. लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप के तीसरे इजलास से खिताब किया। इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर एक नए दौर का मुशाहदा करा है जिसने तरक्की और अमन के लामहदूद इम्कानात को खोल दिया है। अब गैर मुल्की सरमायाकारी भी जम्मू कश्मीर में आ रही है। कश्मीर की आबो हवा
और यहाँ की ज़ियाफ़तों को चखने के बाद कल G20 डेलीगेट्स का सफ़र इसी मार्केट में, पोलो व्यू मार्केट में इख्तिताम को पहुँचेगा। यहाँ के लोगों को, यहाँ के दुकानदारों को काफ़ी उम्मीदें हैं कि जब यहाँ से G20 डेलीगेट्स जाएंगे और अपने अपने मुल्कों में पहुँचेंगे तो कश्मीर का एक विरसा, कश्मीर का एक एहसास और कश्मीर की एक रूह लेके जाएंगे। हम कुल मिला के ये कह सकते हैं कि कश्मीर बदल रहा है, कश्मीर की तस्वीर बदल रही है। जहांगीर अजीज के साथ न्यूज़ 18 के लिए मैं सरोज कफील। G20 के मंदुबीन मशहूर मुगल गार्डन्स का आज दौरा करेंगे। मंदुबीन हाल ही में तज़ीन नौ करदा पोलो वे मार्केट का दौरा करेंगे। ये मार्केट सयाहों की तवज्जो का एक बड़ा मरकज बन गया है। इस ब्रिटिश इरा मार्केट में दस्तकारी और हैंडलूम की बहुत सी दुकानें हैं और दुकानदार पुरुम्मीद है कि दुनिया भर से आने वाले G20 के मंदुबीन इस बाजार में कश्मीर के हकीकी जौहर को देखेंगे। इस G20 का जो यहाँ इजलास हो रहा है, ये इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के नाम से भी जाना जाता है। कश्मीर की खूबसूरती इस G20 के इजलास की वजह से, जब ये मुंदुबीन रिप्रेजेंटेटिव्स अपने अपने मुल्क में जाएंगे, जम्मू कश्मीर की खूबसूरती को ये प्रोपोगेट करेंगे। इससे जम्मू कश्मीर का जो लार्जेस्ट इंडस्ट्री जो है, जो टूरिज्म की है, वो इसे प्रमोट होगी। यहाँ से टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा, यहाँ के ट्रेड को बूस्ट मिलेगा, यहाँ का जो बेरोजगार नौजवान है उसको रोजगार फराहम मिलेगा। और जम्मू कश्मीर में जो वाकई आज अमन की राह पर गामजन है, जो जहाँ चारों तरफ आज खुशहाली और अमन आपको दिखाई दे रहा है, बल्कि ये जो है जम्मू कश्मीर आगे भी बुलंदियों को छूकर जो है जम्मू कश्मीर एक नया जम्मू कश्मीर बनने वाला है। जम्मू कश्मीर ही इसके लिए चुना गया कि मेज़बानी के लिए। ये हमें बहुत ही बड़ी, हम खुशकिस्मत वाले लोग हैं कि हमारे लिए, क्योंकि इससे हमारी टूरिज्म में ग्रोथ हो जाएगी और ट्रेड में ग्रोथ हो जाएगी। क्योंकि यहाँ जो बहुत से बच्चे ऐसे नशों में लगे हुए हैं कि उनको कोई जॉब है नहीं, इससे उनका जॉब भी खुल जाएगा। और मैं शुक्रगुजार हूँ श्री नरेंद्र मोदी जी का कि जिसने ये G20 यहाँ पर इसकी कन्वेंशन लगा दिया और हमें बहुत खुशी हुई है कि हम इसके लिए चुने गए हैं। अगर हम 2008 से देखें तो यहाँ के कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने एक ऐसी तस्वीर दर्शाई बाहरी मुल्कों में कि यहाँ पे हालात कुछ इस तरह बनाए गए, एटमॉस्फेयर कुछ इस तरह क्रिएट किया गया कि लोग जो है वो परेशान थे, ट्रेड पूरा ठप बैठा था। जब से श्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ की भागदौड़ वापस संभाली, तब से अगर हम देखें तो ट्रेड में भी वापसी आई। आज G20 का इजलास यहाँ पे हो रहा है। हम देख रहे हैं कि आने वाले टाइम में जो है यहाँ पे टूरिज्म फैक्टर जो है वो बढ़ जाएगा। उससे जो है कहीं ना कहीं सारी बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, क्योंकि टूरिज्म सेक्टर जो है J&K के रीढ़ की हड्डी है। इससे कितने लोग चलते हैं, घोड़े वाले हो, ट्रैवल एजेंसीज हो, ड्राई फ्रूट हो, कश्मीर आर्ट हो, ये सब जो तबके हैं वे वापस आएंगे और इकनॉमी को बूस्ट मिलेगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। बैद्यनाथ कब्ज हर, पुरानी कब्ज, एसिडिटी व अन्य पेट की परेशानी में उपयोगी। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। नमस्कार, आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आइए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में।
जन्नत नज़ीर कश्मीर में G20 की बैठक का शानदार आगाज। टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की हुई बैठक। 2019 में जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किए जाने के बाद पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, जी किशन रेड्डी और G20 शेरपा अमिताभ कांत ने G20 की बैठक का किया संबोधित। कश्मीर से बॉलीवुड फिल्मों के रिश्तों को लेकर हुई चर्चा। अमिताभ कांत ने कहा कि कश्मीर में 370 फिल्मों और OTT की शूटिंग के लिए लिया गया है परमिशन। कश्मीर में G20 की बैठक शुरू हुई। विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने बैठक का स्वागत किया। कहा यह बैठक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कश्मीर के नकारात्मक सोच को बदल देगी। G20 की बैठक में अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और यूरोपीय यूनियन समेत 17 देशों के 60 डेलीगेट्स ले रहे हैं हिस्सा। श्रीनगर में आयोजित G20 की बैठक में एक्टर रामचरण हुए शामिल। फिल्म सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। जिला कठुआ में कालीबाड़ी के करीब जम्मू पठानकोट कौमी शाहराह पर एहतजाज करने वाली ख्वातीन ने शराब की दुकान खोलने की इजाजत न देने का मुतालबा किया। इन्होंने अपने एहतजाज में शिद्दत पैदा करते हुए कहा कि इस दुकान को जल्द अज जल्द मुंतकिल किया जाए। इन्होंने कहा कि वो पिछले 5 साल से बीजेपी से वाबस्ता है, लेकिन आज इनकी पार्टी इनकी बात नहीं सुन रही है। इन्होंने पार्टी आलाकमान से अपील की है कि शराब की दुकान को जल्द से जल्द यहां से मुंतकिल किया जाए, वरना वो बीजेपी को वोट नहीं देंगी। मामला यह है कि साढ़ा इत्थे महल्ला घर है ते शराब की दुकान साढ़े दरवाजे दे विच खुल्ला दी है। हुण तुस दसो ये कोई अच्छी गल थोड़ी है ते ये दुकान असें नहीं खुल्लन देनी। असें बीजेपी की सारी उम्र वोट दी ते अज बीजेपी की सरकार आई ते साढ़े दरवाजे दे विच शराबे दी दुकानां लगियां खुल्लन। सारी उम्र होई है। देश दे प्रधानमंत्री क्या असें आखना चाहते हैं कि साड़ी उंदे अगे हत्थ जोड़ियै रिक्वेस्ट है कि जे ये शराब की दुकान साढ़े दरवाजे अगे नहीं खुल्लनी चाहिए है। असें बर्दाश्त नहीं कर सकते। बीजेपी पार्टी अगर सारे कोला पहले ये रिक्वेस्ट रखना चाहनी है कि असें 5 साल होई आ थुआढ़े कन्नै जुड़े दे, अस तुहानू वोट दिन्ने आ ते ओहदे बाद भी तुस साड़ी इत्थे दुकानां खुल्ला दियां ने शराब दी दुकान इत्थे नहीं खुल्लनी चाहिदी, क्योंकि साढ़े म्हल्ले च साढ़े बूहे अग्गे दुकानां खुल्ला दियां, एह् अस लोग बर्दाश्त नहीं करी सकदे। साढ़ी लेडीज हद कोला बद्ध ने होआ दा है। अस सारियां मावां भैणां ताइयों इत्थे कट्ठियां होई दियां कि एह् दुकानां इत्थे नहीं खोलियां जान। मेरी इ'यै रिक्वेस्ट है सरकार अग्गें भी इत्थे जेह्ड़ी शराब दी दुकान है बिल्कुल नहीं खुल्लनी चाहिदी। कोल स्कूल, कोल मैडिकल कॉलेज, कोल हॉस्पिटल, इत्थे राती बराती चलना भी मुश्किल होई जाना साढ़े कोल। ये तो बैटर है अस बीजेपी के पक्के फैन है। अस अगर इन्हें शराब की दुकान इत्थे खोली तो अस बिल्कुल वोट नहीं देना बीजेपी की। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने नतायज जारी किए। सिविल सर्विसेज नतायज में जम्मू कश्मीर के उम्मीदवारों ने शानदार मुजाहरा किया। अनंतनाग के वसीम अहमद भट्ट ने इस बार यूपीएससी इम्तिहान में मुल्क भर में 7वां मुकाम हासिल किया। इन्होंने जम्मू कश्मीर के साथ साथ अपने इलाके का नाम रोशन किया। वसीम अहमद भट्ट ने दूसरी मरतबा सिविल सर्विसेज इम्तिहानात में कामयाबी हासिल की है। इम्तिहानी नताइज बरामद होते ही पूरे इलाके में खुशी का माहौल देखा गया। अहले खाना ने मिठाइयां तकसीम की। जम्मू कश्मीर से जुमला 7 उम्मीदवारों ने यूपीएससी में कामयाबी हासिल की है। पहले भी उसने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, आज भी उसने क्वालिफाई किया। पहले उसका रैंक है 225, आज 7th रैंक आया है उसका। मैं बहुत खुश है। यहाँ के लिए भी, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के लिए, पूरे कश्मीर के लिए भी बहुत खुशी है। मैं बहुत खुश। अल्लाह ताला का ये बहुत शुक्र, हम शुक्रगुजार है खुदा का। इंसान लक्ष बजिस वरियस कर इबादत, अगर अल्लाह ताला सुन सर साय आसस न यह लगन कुन असली फी अल्लाह ताला सती तम खड़ी मेहनत तम सुन बोट तम सुन करम तम सुन फजल करम तो अमिस दितुन सह ताकत, अमिस दितुन सह शौक, तो ये शौक सह सठा मेहनत न शंगुन न करुन न कह, मगर बहुत तमिस रब्बुल इज्जत कुन सठा शुक्र गुजार।
जिला कठुआ के एक सरकारी टीचर मनोहर सिंह के बेटे नितिन सिंह ने यूपीएससी इम्तिहान के नताज में 32वां रैंक हासिल करके इलाके का नाम रोशन किया। इस कामयाबी से अहलखाना और गांव वालों में खुशी की लहर दौड़ गई। घर वालों ने बताया कि नितिन शुरू से ही मेहनती था। नितिन इससे कबल केएस में कामयाबी हासिल कर चुका है और श्रीनगर में अपने फराइज अंजाम दे रहा है और अब यूपीएससी में कामयाबी हासिल करके एक मिसाल कायम की है। यूपीएससी परीक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद जिला कठुआ में भी खुशी की लहर है। आपको बता दें कि जिला कठुआ का एक छोटा सा गांव टोरसी में हम यहां पहुंचे हैं। आपको बता दें कि नितिन सिंह ने यहां पर 32वां रैंक लेकर इलाके का नाम रोशन किया है। ये बात करते हैं उनके पिता से, जानते हैं कि कितनी खुशी की लहर है आज उनके गाँव में। जी सर, खुशी तो हमें बहुत है। हम एक छोटे से गाँव ब्लॉक बरनोटी में फॉल करते हैं। गाँव डोरसी है हमारा। 2022 बैच में उसने यूपीएससी में अपेयर हुआ था। आज उसका रिजल्ट आ गया है और हमें बहुत खुशी है। इस खुशी के मौके पे हमारे जो चाहने वाले बिल्कुल हमें बधाई देने देखो बैठे हैं। बहुत खुशी है और हमारे घर का जो माहौल है वही बड़ा खुशनुमा बन गया है। आज यहाँ पिछड़ा हुआ इलाका है हमारा, यहाँ रोड की सुविधा, जहाँ कोई फैसिलिटी, हॉस्पिटल की फैसिलिटी, चाहे ईमानदारी से काम किया जाए हर फील्ड में, तो वो लोगों को अच्छा लगे, वही काम करना चाहते हैं। ये उसका शुरू से एम है। हमारे लिए बहुत बड़ा काम है। उसने जो कर दिखाया है, जो नामुमकिन था उसने मुमकिन कर दिया। 32 रैंक प्राप्त करना यूपीएससी ऑल इंडिया लेवल पे। मैं बच्चों को भी यही कहता हूँ कि डेडिकेशन से, मेहनत से, यही हमारे लिए भगवान है। मेहनत ही भगवान है और ईमानदारी के क्षेत्र में बहुत स्कोप है। बिल्कुल, ये उनके पिताजी थे और उन्होंने भी कहा है ईमानदारी के साथ अगर इंसान मेहनत करे तो लक्ष्य जरूर प्राप्त करता है। उनके गाँव वासी कुछ यहाँ पर पहुंचे हैं, बधाई देने उनके घर, उनसे बात करते हैं। जी सर, क्या नाम है? हाँ जी, मेरा नाम जय सिंह काटल है। जय सिंह जी, कितनी खुशी की बात है इलाके की? बहुत ज़्यादा खुशी की बात है यार। हम तो ये लड़का मैं बचपन से जानते हैं, इकट्ठे रहते हैं हम, तो हमें पूरा विश्वास था कि ये IAS करेगा। और हमारा छोटा सा गांव जो पिछड़े हुए गांव है, ये हम सोच नहीं सकते थे कि हमारे आपको क्या लगता है तरक्की होगी आपके? हाँ, क्यों नहीं तरक्की होगी यार। उसके जो पीछे बच्चे अभी आने वाली जनरेशन है वो भी इससे थोड़ी सी प्रेरणा लेंगे और वो भी मेहनत करेंगे। वो भी हम चाहते हैं कि वो भी थोड़ा सा आगे बढ़ें। इन बच्चों से बहुत प्रेरणा मिलती है। जो ऐसा सोचेंगे तो करेंगे, नेचुरल उनको प्रेरणा मिलेगी और करेंगे वो। बिल्कुल, जय सिंह जी थे, इनके पड़ोसी थे यहाँ पर। इन्होंने भी कहा है कि यहाँ के स्थानीय जो युवा हैं कहीं ना कहीं उनको भी एक टारगेट सेट करना चाहिए और अपने देश और अपने इलाके के लिए कुछ करना चाहिए। उनकी माताजी हमारे साथ हैं, नितिन सिंह। आज मुझे बहुत खुशी है अपने बेटे पर। मैं बहुत गर्व फील करती हूँ कि मेरा बेटा आज जहाँ पहुँचा है और सबको ऐसी औलाद मिले। बहुत अच्छा उसने काम किया, पढ़ाई में उसकी बहुत लगन थी। वो आज उसका सपना पूरा हुआ है तो हमारा भी हुआ। बहुत लोग आ रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, घर भी आ रहे हैं। गांव में भी बहुत खुशी की लहर है। जो कोई भी सुनता है सब खुशी मना रहे हैं, तो बहुत खुश हैं हम। बिल्कुल, उनकी माताजी और गांव वासियों में भी चेहरे पर भी काफ़ी खुशी है और इन्होंने भी कहा है कि बधाइयां देने वालों का तांता जो है इनके घर में लगा हुआ है। और नितिन सिंह ने 32वां रैंक हासिल किया है और कहीं ना कहीं जो नई पीढ़ी है, नौजवान युवा है इनके इलाके के, वो कहीं ना कहीं नितिन सिंह को देखकर तरह के एग्जाम को क्रैक करेंगे और अपने इलाके का नाम रोशन करेंगे। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए कठुआ से चरणजीत सिंह।